Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. The purpose of today's Zoom talk is to introduce our trainees to the recent changes, the FCPS exam, and so that they may not be anxious or they may not be any difficulty. IRB level पे मतलब के प्लीज अब आप म्यूट कर लें सारे सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें। ये तो फिर चीजें जो दरमियान में खत्म भी हो जाती है। प्रयाल अपने माइक म्यूट करें। Okay, ji. So we will discuss MCQs based exam and changes in the practical. लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए जरा मुझे बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। करने के लिए कोशिश करेंगे तो हम इसको भेजेंगे। कोई हमारे साथ करना चाहता है तो हम मिनिमम अपनी ये उसका माइक जो है ना वो सफल है इस तरह से अपने सिग्नेचर और आवाज आ रही है लेटर के साथ इसमें ये पॉइंट्स हैं तो आप सिर्फ मेरे ख्याल से ओके मैंने सबको अब म्यूट किया तो बीच में कुछ एक पोर्शन करके फिर हम मैं अनम्यूट करूंगा इसको। ओके जी, द MCQ based exam is paper 2 was converted to MCQ about 3 years ago. Paper 1 has also been converted to MCQ, and the October exam of 2021 will be MCQ. So both papers will be MCQs. The notification on this effect was issued on 16 April. So those candidates who are appearing in October 2021, please note that both your papers will be MCQs. And as you might be knowing that at AFIP in CPSP, the exams are as you know, the exams at CPSP are conducted on the computer. So they are not paper pen exam, they are computer based exam. You will be provided laptops to take your exam. So this is important, and now I'll share with you some of the topics of paper 1, because paper 2 has already been MCQ for quite some time now, for about 3 years. So you might be knowing about paper 2 a lot. So we will discuss mainly paper 2. The topics in paper 2, please let me first tell you that we will not share with you the number of questions in each for each topic, because that is confidential. But I will just tell you the main topics and subtopics which you have to prepare. The major area, first major area is lab management, and it includes lab safety, pre-analytical conditions, specimen collection, processing, etc., clinical utility of lab tests. It means specificity, sensitivity, diagnostic accuracy studies, etc. All are included in this topic. Then method validation and its statistical procedures. Quality management includes quality control, quality assurance, internal quality, external quality. Everything is included in this. Then computers in lab, which means LIMS, and planning and laboratory administration, laboratory accreditation, BOCT, lab statistics, and miscellaneous, for example, water purification, etc. So when there is miscellaneous, it gives the examiners or the paper setters some margin to add some topics.
one odd question from any topic which has been left in the list. Or what is in lab statistics, that is mainly the mean, SD, and all the basic statistics you already know. Second major area is laboratory techniques and instrumentations, and it includes optical techniques, and you know, 7 techniques: uh, the colorimetry, the chemiluminescence, atomic absorptions, etc. 7 sisters you might be remembering. Then electrochemistry, osmometry, electrophoresis, chromatography, mass spectrometry, immunological techniques, very important, and automation. So all these topics are included in this second group, which is laboratory techniques and instrumentation. Third group is analytical methods, and it includes blood gases, proteins, enzymes, lipids, glucose and glycosylated hemoglobin, bilirubin, uric acid, urea and creatinine, calcium, phosphorus, and magnesium, and miscellaneous, which may include copper, ammonia, lactate. So now I will take a few minutes on this. That when there were SAQs, usually the questions from this part would include the commonly, uh, very commonly occurring, very commonly tested analytes such as glucose, cholesterol, bilirubin, uric acid, etc. So when now in MCQs, you will be having questions from the common analytes, as well as from some from those analytes which may not be very commonly analyzed. So you have to read and conceptualize almost all the tests which are done in the laboratory. But what is the difference? Difference is you don't have to memorize things, because in this topic there are a lot of things. There are fancy names, there are names of these substances which are difficult to memorize. So you don't need to memorize them. You just need to make concepts about them, and know what exactly the reactions are. So there will be questions from analytical methods, from each nook and corner of analytical methods. Last topic is molecular diagnostics. With the pandemic going on, still going on, this is a very important topic, I tell you, and don't leave it for other specialties. This is very much chemical pathology. So there may be questions from basic genetics, from PCR, from gene sequencing, such as NGS. So this was the first part. Any questions or suggestion? Now I will unmute all the participants so that they can ask questions. Let me unmute you. I think you can ask questions now. If you have any query, any comment, any question, please let me know. This is an informal thing, and you can ask anything about the first part. So paper 1 is now completely MCQs, and I have just shown you the areas from which the questions will be coming. Of course, I can't tell you the number of questions from each area because that is confidential. I hope you know about the paper 2, the topics included in the paper 2. If you have any query about that, I can share with you the
topics of the paper 2 also. डॉक्टर आमिर, मेरा ख्याल में सब अभी तक म्यूट हैं, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, लोग हाँ, पूछना चाह रहे हैं कुछ? लोग पूछना चाह रहे हैं। हौरा ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। नहीं, आप पूछें बेटा। नहीं, म्यूट नहीं है। और आप पूछें। नहीं सर, सॉरी, वो मैं गलती से हाथ ऊंचा हो गया था। अच्छा अच्छा, आप अनम्यूट करें और पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर जुबैर बात कर रहा हूँ। किस बैर? सर मैंने पूछना था कि टॉक्सिकोलॉजी और जो टीडीएम है जी जी, वो पेपर 1 के अंदर इंक्लूडेड है या पेपर 2 में उसके पेपर 2 एमसीक्यू में है बेटा, वो पेपर 2 में है। मैं अभी आपको ना पेपर 2 का भी दिखा देता हूँ कि जो लोग पहली दफा क्लियर हो रहे हैं वो, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो आई विल जुबैर, उसमें सर थोड़ा मैं ऐड कर दूं जुबैर के लिए। प्लीज, जरूर। जुबैर, इसके अंदर ये है कि एज ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट ये पेपर 2 के अंदर है, बट एज फार एज द टेक्निक्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज द इंस्ट्रूमेंटेशन इज कंसर्न्ड, तो दैट मे बी आस्क्ड इन पेपर 1 एज वेल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिए, ये पेपर 2 का लिस्ट है टॉपिक्स की। तो इसमें जो पहला सेक्शन है वो रूटीन है, रूटीन केमिकल पैथोलॉजी, रूटीन डायग्नोस्टिक्स जिसको कहते हैं। और एक मिनट, मैं नीचे जा रहा हूँ। सेकंड जो है ना, इसमें वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, थायराइड, adrenal, all the endocrine disorders. And third top area is special diagnostics, and it includes tumor markers, vitamins and trace elements, TDM, clinical toxicology, pediatric metabolic disorders, nutrition, biochemical aspects of hematology, maternal biochemical screening, biochemical disorders of pregnancy, and miscellaneous. Then third is recent advances in chemical pathology, and includes recent advances in metabolic medicine, recent advances in endocrinology, and recent advances in special diagnostic. जी, और आपने कुछ पूछना है? ओके सर, ये आप शेयर कर देंगे इसकी हार्ड, मतलब वो कॉपी। अच्छा, मतलब पेपर 1 की, पेपर 2 की, सारी चीजों की ग्रुप में शेयर कर दे, कहीं भी शेयर कर दे। नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिशियली ये जो है इससे मतलब ये इतना ओपन डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज फॉर जनरल नॉलेज फॉर द पीपल के जी, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नहीं, डॉक्टर नान, हम इनको ये वाला टॉपिक्स तो इनके करिकुलम में भी आ जाएगा। अभी करिकुलम बस प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम आपको वेटेज नहीं बता सकते, टॉपिक्स की लिस्ट बता सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू। लिस्ट हम आपको शेयर कर देंगे। ये इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन आपको हम ये नहीं बता सकते कि आप नहीं, मतलब आप तो कंसल्टेंट है, आपको तो पता है। जो ट्रेनीज हैं उनके लिए हम ओपन नहीं है कि वेटेज उसकी क्या लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है कि फिर आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं अपनी स्टडी में, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं शेयर किया जाता। ओके जी, नाउ वी गो टू द सेकंड पार्ट, विच इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कुछ चेंजेस आई हैं। लेट मी टेल यू व्हाट आर दोज चेंजेस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दी प्रैक्टिकल एग्जाम जो इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको ये नोटिफिकेशन जो हुआ है CPSP की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इट इज नथिंग
सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, ये आप जब एग्जाम में आते हैं तो फिर भी आपको ये मिलता है। तो मैंने वहीं से ये शेयर किया आपको, जो नोटिफिकेशन का पार्ट है। तो इसके कंपोनेंट्स हैं तकरीबन कितने, 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस एग्जाम के 5 कंपोनेंट, ये नोटिफिकेशन है, ये देखें, ये नोटिफिकेशन हुआ है अप्रैल 12 को। तो पहले तो वही जनरल इंस्ट्रक्शन है, वाइट कोट पहनना है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें ऐड कर लें आप जो कोरोना की SOPs हैं कोविड की, वो भी है इसमें ऐड कर लें आप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो एनालिटिकल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये पहले भी हम टॉक स्टाइल में लेते हैं, अभी भी वो इसी तरह होगा, सिर्फ इसमें कुछ सेशन ऐड हुए हैं। पहले 5 सेशन जो हैं वो तो ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ बेसिक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, 2 इंस्ट्रूमेंट्स पर सेशन, ये बिल्कुल वही है जैसे अभी तक कंडक्ट हो रहा है। आप अपने सीनियर से जो लोग अभी अपीयर होना है जिन्होंने, वो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो ये पहले 5 सेशन एग्जैक्टली वही हैं। जो नए सेशन ऐड हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेशन 6 जो है, ये नंबर भी आर्बिट्री है, आपको समझाने के लिए नंबर लगाया है। तो लेकिन ज़ाहिर है बीच में रेजिस्ट्रेशन आ जाएंगे तो ये नंबर 7, 8 भी हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग ऑफ सेमी ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स और PCT डिवाइस, तो ये प्रोग्रामिंग आप IMM में भी करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और इसको एडवांस फॉर्म में आपको हम देंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 में इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेसिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरेसिस, HPLC, PCT डिवाइस, यानी एक कोई ट्रेसिंग रखी जाएगी, जैसे वो रिजल्ट्स निकलते हैं इंस्ट्रूमेंट से, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको इंटरप्रेट करें, ठीक है। ये इंटरेक्टिव भी हो सकता है, स्टेट मोस्ट प्रॉब्ली ये इंटरेक्टिव भी होगा। अब हम सारे जो है ना इंटरेक्टिव भी करेंगे। अच्छा, हैंडलिंग ऑन कॉमन लैब प्रॉब्लम्स के कैरी ओवर हो गया है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, और या कि इंस्ट्रूमेंट कोई उसमें रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट की कंप्लेंट है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? अच्छा, मैं करता हूँ। जरा काइंडली फिर शुरू से जरा बता दीजिए। अच्छा, मैं बताता हूँ। मुझे 1 मिनट देंगे बस सर। थैंक यू रिजवाना, आपने मुझे पॉइंट आउट किया। जी आ गई सर, इसको वो स्लाइड शो पे करके। आदम सिग्नल से सीधा ले लीजिएगा, सीधे हाथ में। Okay, can you see the screen now? जी सर आ रही है। Okay, so we were discussing about the
analytical component 1 of the practical exam. So first 5 stations are the same as previously done, which mainly deal with the operation, maintenance, and quality assurance of basic laboratory instruments. 2 instruments per station. So you can ask from any senior colleague about these 5 stations. Then next station, which may be 6, 7, or whatever it is, will be about the programming. You have already done programming in IMM, but here you can have some more advanced instrument or POCT for programming. Then will be the interpretation of tracing from an instrument, because sometimes in the lab you are required to interpret the results, the basic data which is generated from an instrument, for example, electrophoresis, HPLC tracing, or POCT device. So you'll be asked to interpret those tracings. Then handling of the common lab problems. This is a very wide thing, and you have to you'll be given a problem which is purely analytical, not clinical problem. So you have to then give your best solution, what could be the cause of the problem and how to solve it. Then analytical calculations such as HOMA, reality, etc. This has also been you have been doing in IMM, but here the purpose is that you may not stop learning these calculations after you pass IMM. So you must continue learning these calculations. Then the urine module has been aborted. There will be no urine module, but there will be one station regarding the urine test, which will be the interpretation of urine test, or there may be some calculation of some indices, maybe 2 indices. So most probably all these 10 stations will be interactive. There will be no static station. जी जी प्लीज अब कर लें जरा. सर चैट्स में काफी क्वेश्चन आए हैं, अगर काइंडली एड्रेस अच्छा अच्छा मैं देख लेता. सर कैन दी रिकॉर्डिंग बी शेयर्ड? यस, हम रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे. और कुछ? ओके ओके जी. सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो स्ट्रक्चर असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल टेक्निक स्किल्स SAAS है. और ये वही है एग्जैक्टली जैसे अब अभी आजकल कंडक्ट हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है. बस अब इसको डिटेल में हमने लिख दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया कि किस तरह से इसकी ये होगा. तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. ये CPSC की वेबसाइट पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. नोटिफिकेशन किसी को चाहिए हो तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. पहले भी बहुत दफ़ा शेयर हुआ है वैसे. तो इसमें 2 टेस्ट होंगे. फर्स्ट इज एंड पॉइंट टेस्ट, इसके 60 मिनट्स हैं और 5 मार्क्स हैं. तो उसमें एनालिसिस के 45 मिनट्स और 4 मार्क्स हैं. और जो ये बहुत ऑब्जेक्टिव हमने रखा है. इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा और जो की रिजल्ट होगा उससे 22 निकाल के आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे. तो ये सारा फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि अगर 10% से कम आपका 22 है तो फुल मार्क्स होंगे. 10 to 30% में 75 मार्क्स एंड मोर देन 30 में. ये हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहे हैं आजकल. पिछले 3-4 एग्जाम में इसी तरह कंडक्ट किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रिजल्ट गलत हो जाए तो इट मे ब्रिंग यू 0 मार्क्स. और 0 मार्क्स किसी एक कंपोनेंट में आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है पास होना. तो इसलिए ये आपने बहुत अभी भी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने छोटे इंस्ट्रूमेंट पे लैब वगैरह पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. जो टेस्ट 2 है वो काइनेटिक टेस्ट है. उसके भी इसी तरह 60 मिनट्स हैं और 5 मार्क्स हैं. उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. लेकिन ज़ुबैर आपका म्यूट कर लें अपना माइक, आपकी आवाज़ आ रही है.
मोहम्मद जुबैर, नहीं मोहम्मद शकील, कि डॉक्टर मोहम्मद शकील कौन है? प्लीज अपना माइक। ओके, इसमें थोड़ा सा ये फर्क है कि इसमें 15% तक फुल मार्क्स हैं और 15 उसमें 10% तक है एंड पॉइंट में, और कैनेडिक में 15% तक है, क्योंकि एंजाइम थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए इसमें लिवरेज ज़्यादा है एरर की। तो 10 to 30% 75 और इसमें 10 to 40% 75 है, और 0 मार्क्स मोर देन 30 और इसमें 0 मार्क्स है मोर देन 40। तो ये कंपोनेंट 2 है। अब आप नोट करेंगे कि अब नए सिस्टम में देयर आर नो सब कंपोनेंट्स, देयर आर ओनली कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये मेजर 2 कंपोनेंट्स हो गए। कंपोनेंट 3 क्वालिटी इंश्योरेंस, ये बिल्कुल वही है जो आजकल हो रहा है। इसके 2 पार्ट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल 60 मिनट्स एंड 3 मार्क्स, एंड मेथड वैलिडेशन 120 मिनट्स एंड 7 मार्क्स। इसमें रेप्लिकेशन स्टडी है, रिकवरी स्टडी है, इंटरफेरेंस है, और लीनियरिटी एक्सपेरिमेंट है, कंपैरिजन ऑफ मेथड एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारे जो है ना इसमें आ सकते हैं, और आजकल हम ये कोशिश करते हैं कि सबको एक ही एक्सपेरिमेंट आए ताकि स्टैंडर्डाइज हो जाए, लेकिन जो एक ही एक्सपेरिमेंट आएगा वो इन्हीं में से कोई आ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आप पहले से कर रहे हैं। देन कैडिस है, डे 2 पे पहला कंपोनेंट जो है कंपोनेंट 4 कैडिस, इसके 25, अब पहले 20 थे, अब 25 स्टेशन हैं, डाटा रिच, और वही 2 मिनट्स ईच फॉर ईच, एंड मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, सब कुछ इसमें पूछ सकते हैं। टॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई कमेंट है तो, या कोई क्वेश्चन है तो, या चैट में लिख दें, या वैसे माइक ऑन करके पूछ लें। ये डॉक्टर सदिया ने सर पूछा है कि सर पेपर 1 वुड बी क्वेश्चन बी केस बेस्ड लाइक पेपर 2 और मिक्स्ड टाइप? पेपर 1 में हर क्वेश्चन जो है ना, कोशिश ये है कि वो केस बेस्ड हो, यानी सिनेरियो बेस्ड हो। खासतौर पे जब आप ई पोर्टल में क्वेश्चन डालते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता जब तक सिनेरियो ना हो। तो सिनेरियो जरूर होता है, लेकिन अभी कुछ हो सकता है पुराने क्वेश्चन हो उसमें सिनेरियो ना हो, तो और आसान हो जाता है आपके लिए, लेकिन सिनेरियो ऑलमोस्ट तकरीबन सब क्वेश्चन में होगा। तो अब सिनेरियो जो पेपर 1 के है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पेशेंट नहीं है, ये नहीं होगा कि उसमें ये होगा ए टेक्नोलॉजिस्ट वाज वर्किंग ऑन दिस, ए केमिकल पैथोलॉजी वाज assigned a duty to perform this test, a laboratory manager is performing this। तो स्टार्ट वो इसी से होगा, लेकिन उसमें पेशेंट नहीं होंगे, बल्कि वो वर्कर्स होंगे। बाज़ बार पेशेंट वाला भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री एनालिटिकल कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो उसमें पेशेंट भी आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पेशेंट हो। तो एक ज़रा सा आपके लिए लाइटर टोन में मज़ेदार बात बताऊँ, अगले दिन हम एक क्वेश्चन था, या इस तरह का क्वेश्चन लोग बना के भेज सकते हैं। ए 32 years old trainee chemical pathology is doing experiment on this। तो इसमें एज नहीं आएगी ना, इसकी जेंडर आएगी, बल्कि सिर्फ ये लिखा होगा कि ये रेजिडेंट केमिकल पैथोलॉजी इज डूइंग दिस, और ए कंसल्टेंट केमिकल पैथोलॉजी इज डूइंग दिस। ठीक है, तो सिनेरियो जरूर होगा, मोस्ट प्रॉब्ली होगा, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ना हो। और कोई क्वेश्चन, कमेंट किसी का? अच्छा, बस ठीक उसके है बाद सर। जी जी सर रिजवान जी ठीक है सर, आगे आगे चलिए। जी, चैट में कुछ आया हुआ है, क्या लिखा है? थैंक यू, ओके। अच्छा जी, अब जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी कि वाइवा नहीं होगा, वाइवा हैज बीन एबॉलिश्ड। सो डिटॉक्स इज गुड रिप्लेसमेंट ऑफ वाइवा। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों वाइवा ख़त्म किया गया और क्यों टॉक्स स्टार्ट किया गया? वाइवा में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। एग्जामिनर
क्या परसीव करता है और क्या उसके पास की है और क्या आंसर वो चाह रहा है, किसी से आसान सवाल पूछ रहे हैं, किसी से मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। तो इस लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से वाइवा को ख़त्म किया गया है। तो टॉक्स में क्या चीज़ है कि टॉक्स में ऑब्जेक्टिविटी है कि आपने क्या पूछना है, और स्टैंडर्डाइजेशन है कि हर एक से एक ही चीज़ पूछी जा रही है और उसकी की पहले से प्रिपेयर्ड है, मार्क्स असाइंड है, यानी उसका एग्रीड जो आंसर है वो लिखा हुआ है, और हर जो उसका सेशन का कंपोनेंट है उसका मार्क्स, उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको टॉप स्टेशंस के बारे में बताता हूँ। ये तकरीबन 13 स्टेशन होंगे, लेकिन इसमें एक रेस्ट स्टेशन भी शामिल किया गया है। तो एक्चुअली ये 12 स्टेशन है। तो रेस्ट स्टेशन 2 भी हो सकते हैं, रेस्ट स्टेशन 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ये समझें कि 12 जो फंक्शनल स्टेशन है वो 12 हैं और सारे इंटरेक्टिव हैं, ये याद रखिएगा। अब कोई स्टैटिक स्टेशन नहीं है टॉप्स में, सारे इंटरेक्टिव हैं और तकरीबन हमने 10 मिनट रखे हैं हर के लिए। तो एक्सटर्नल जो स्टेशन 1 है वो इकास का है। अब आप देखें जो अब तक जितना एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकास के बारे में हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम ठीक है, आप थ्योरी में पूछ सकते हैं, आप वाइवा में पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक्चुअल स्किल है उसको जज करने के लिए कोई चीज़ नहीं था। अब ये एक पहला स्टेशन जो है ना वो इकास पे होगा, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट पे। उसमें क्या होगा कि आपको कोई शीट दी जाएगी जैसे जिसमें वो जी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, या एंड ऑफ साइकिल की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी दी जा सकती हैं, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2 सब सेशन होंगे, यानी 5-5 मिनट में 2 चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। सेशन नंबर 2 इज अगेन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसमें अदर मेजर्स जो हैं जैसे डेल्टा चेक है, 6 सिग्मा है, लीन मैनेजमेंट है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसमें और चीज़ें भी आजकल आ रही हैं, जैसे वो जो नई पेशेंट सेफ्टी के एस्पेक्ट से है, तो वो भी आपसे इसमें रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो भी पूछा जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद सेशन 3 है विच इज़ मेथड वैलिडेशन। अब मेथड वैलिडेशन में ये आपसे ज़ाहिर है, आपसे मेथड वो कोई प्रैक्टिकल तो नहीं करवाना, तो आपको डाटा दिया जाएगा और ये कंप्यूटर स्क्रीन पे या उसकी हार्ड कॉपी, और अब आपने उसको इंटरप्रेट करना होगा कि ये इसके एनालिसिस से क्या चीज़ ज़ाहिर हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेशन 4 एंड 5 दो सेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ लैब फाइंडिंग्स। इसमें एक्चुअल पेशेंट भी आपके पास हो सकता है और पेशेंट का इमेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल थायराइड का पेशेंट है, आपसे कहा जाए कि इसका डायग्नोसिस बताएं और उसकी लैब जो रिपोर्ट्स आता है उस पर इंटरप्रिटेशन बताएं, ठीक है। या आपको पिगमेंटेशन वाला पेशेंट की पिक्चर हो और उसके साथ उसकी फाइंडिंग हो, आसान होगा इंशाल्लाह। आपने जितना आप तक क्लिनिकल नॉलेज है आप बड़े आसानी से इंशाल्लाह इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है ना वो याद रखिए, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद इंशाल्लाह कभी हो जाए कि 14 या 15 कैंडिडेट आ जाते हैं, तो और स्टेशन चूँकि हमारे 12 हैं तो हम 3 रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट कम है, 12 से भी कम है, तो फिर हम रजिस्ट्रेशन एक ही डालेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है ना डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद डिस्कशन ऑन डाइजेशन रिसर्च आर्टिकल्स, ये आपका आईएमएम में भी था और इसमें भी है। अब ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में होगा, आपने क्या डाइजेशन लिखी थी, आपने क्या आर्टिकल लिखे थे, इसमें पूरा एक सेशन है। फिर एक पूरा जो है डिस्कशन ऑन ई लॉग एंट्रीज पे है, ये भी 10 मिनट्स का सेपरेट पूरा ये सेशन है। सेशन 9 जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कैलकुलेशन पे है कि आपने कैसे इन्वेंट्री मैनेज करनी है, आपने जैसे आपने डिमांड बनाने हैं नेक्स्ट ईयर की, वो कैसे बनाएंगे, आप किटों की कॉस्ट
टेस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपने, आपको टास्क मिला कि इस टेस्ट के कितने पैसे चार्ज किए जाएं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको एज कंसल्टेंट, एज स्पेशलिस्ट आपको करनी पड़ती हैं। सिर्फ आपको टेक्निकल काम नहीं करना पड़ता, आपको बहुत सारी मैनेजमेंट की चीज़ें करनी है। फिर जो नेक्स्ट 2 सेक्शन है 10 एंड 11, ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि आपको इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि अब जो कैडिस है वो, उसमें आप सिर्फ एक सरफेस आप ये बताते हैं डायग्नोसिस क्या है, नेक्स्ट टेस्ट क्या करना है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमने ये अब देखना है कि आप कितने इन डेप्थ तक जा सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल में कैडिस ही बताता हूँ कि आपको वही कैडिस जैसा डाटा मिला, आपसे डायग्नोसिस पूछा, आपने बता दिया, आपसे पूछा इसके फर्दर टेस्ट क्या कराएंगे, आपने कहा जी ये टेस्ट कराएंगे। अब आपको वो जो फर्दर टेस्ट हैं उनके रिजल्ट आपके सामने रख दिए जाएंगे। कि अब आप देखें जी ये रिजल्ट आ गया उसका, अब क्या करेंगे, आप कहेंगे जी आप इसकी प्लान इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसका रिजल्ट आपको दिखा दिया जाएगा कि अब ये रिजल्ट आ गए। तो अब आप फाइनल इसको कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, तो ये इस पर डिस्कशन होगी, इंटरेक्टिव होंगे। और ये भी आपकी पूरे 4 साल की जो क्लिनिकल एंड लैब एक्सपीरियंस है लैब मेडिसिन का, वो इसमें असेस होगा। यानी इन डेप्थ एनालिसिस है ये। मैं आपको बताऊं जैसे यूएसएमएल एग्जाम है ये, या जो प्लैब है यूके का, हालांकि वो अंडर ग्रेजुएट्स के एग्जाम है, आप मतलब वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो एमडी की डिग्री देते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसमें कंप्यूटर्स पे ही आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उस ऑप्शन के बारे में कंप्यूटर आपको बताता है कि ये ऑप्शन आपकी ठीक थी या गलत थी, और उसको आगे फिर लेके जाते हैं। तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ। कभी इंशाल्लाह हमारी जब आईटी इतनी एडवांस हो जाएगी तो हम इसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, ये तो आपने आईएमएम में भी किया है, ये उसी तरह की चीज़ है, ज़रा ज़्यादा थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छी तरह से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद लैब्स, अच्छा हाँ, ये मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं हो सकती, ये आपको ट्रेनिंग के साथ भी असेस होगी, लैब स्टाफ के साथ, कि आपके लैब में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, आपके क्लिनिकल कोलीग के साथ टेलीफोन के ऊपर, तो ये किसी तरह भी ये असेस हो सकती है। सिर्फ वो बेसिक ब्रेकिंग बैड न्यूज़ टाइप नहीं होगा, बल्कि ज़रा और चीज़ें भी इसमें होंगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस आपको करवाएं मुख्तलिफ जगहों पे। सेक्शन 13 लैब सेफ्टी है, तो लैब सेफ्टी जैसे आईएमएम में भी आपने किया है, अब थोड़ा सा और इसमें आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखेंगे कि किस तरह से आपने दैट वाज ऑल। तो ये मैं आपको इसके शुरू का कंपोनेंट बता दूं, ये टेबल रह गया था दिखाना आपको, ये टेबल देख लें कि ये समरी है इसकी। अब देर आर नो सब कंपोनेंट्स, ऑल आर मेन कंपोनेंट्स, देर आर 5 कंपोनेंट्स एंड 3 will be on day 1 and 2 components on day 2, और मैक्सिमम मार्क्स हर कंपोनेंट के 10 हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स हर कंपोनेंट के 5.5 है। लेकिन एग्रीगेट में आपने 30 मार्क्स लेने, यानी 60% मार्क्स लेने आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ये है जो नया प्रैक्टिकल है, जो इंशाल्लाह अक्टूबर में जो लोग अपीयर होंगे वहाँ से शुरू होगा। नाउ यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग अभी अपीयर होने हैं थ्योरी में प्रैक्टिकल में, वो ज़रूर क्वेश्चन पूछें ताकि आपकी एंग्जाइटी कम हो एग्जाम वाले दिन। थैंक यू। चैट में लिख दें क्वेश्चन, या वैसे माइक ऑन करके पूछ लें। बस मेरी तरफ से यही था आज। तो अब आपने अब आप पे आप क्या पूछना चाह रहे हैं और उसके मुताबिक अब टाइम है। सर डॉक्टर जुबैर बात कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था
आप जुबैर तो कौन से आपने हैं जो आप मुल्तान में जिन्होंने ज्वाइन किया है? नहीं पीके जी सर, इंडस जी हॉस्पिटल सर, ज्वाइन किया जिन्होंने। जी सर, देखिए हमारी कंसल्टेंट। इंटेलिजेंस, हम अपने बच्चों का सारा ट्रैक रखते हैं कौन कहाँ पे है। जी सर। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो अच्छा आपको, बहुत अच्छी जॉब आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सर। हाँ बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा कि जो एंड वाला जो होगा वाइवा, उसके अंदर एक्सटर्नल क्वालिटी जो असेसमेंट होगी उस पे एक टॉक का स्टेशन होगा। जी अब जी सर डिफरेंट लैब्स हैं, कुछ रिकास कर रही होती हैं, कुछ निकाब और कुछ कैब कर रहे होते हैं। तो हाँ वो जरा बता दें कि वो किस पे बंदा ज्यादा प्रैक्टिस करे, अपने ट्रेनिंग्स को या अपने जूनियर्स को बताए बंदा कि आप हाँ इसको ज्यादा। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जुबैर। आपने जो प्रैक्टिस करानी है ना वो इंटरनेशनल उस पर करानी है, ठीक है? जी जी इंटरनेशनल जो कोई भी प्रोग्राम है, वैसे तो बेसिक तकरीबन सबके वही हैं, यानी वो जी वैल्यू और वो सारे जो एंड ऑफ साइकिल रिपोर्ट में जो चीज़ें होती हैं वो सारी होती हैं। तो जब आप इंटरनेशनल की प्रैक्टिस कराएंगे तो निकाब तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, निकाब कोई इशू नहीं है, सर। ठीक है? तो आप इंटरनेशनल की प्रैक्टिस कराएं। अगर वो लैब में नहीं भी रन कर रहे तो आपको उसको कहीं भेजना पड़ेगा, या फिर आप उसको उसके लिए कहीं से मंगवाएं रिपोर्ट्स और उसको ये कराना पड़ेगा। हाँ, या मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो है, जैसे HPLC कोई कहेगा जी हमने, हमारी लैब में नहीं है HPLC, हमारी लैब में osmometer नहीं है, हमारी लैब में फलां चीज़ नहीं है, ये क्यों एक्सक्यूज़ नहीं है? क्योंकि ये टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, ये फाइनल एग्ज़ाम है। इसमें आपकी लैब में अगर कुछ नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस जगह जाएं जहाँ पे ये हो रहा है। FIP जाएं, आगा खान जाएं, ज़ियाउद्दीन में जाएं, चुगताई में जाएं, जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और वहाँ से जाके सीखें। क्योंकि ये तो वेरी करता रहता है, कभी किसी लैब में मशीन ख़राब हो गई कोई, तो ये तो नहीं कोई एक्सक्यूज़ ना, क्योंकि कल को आपको जब कंसल्टेंट बनेंगे तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट बस अब तैयार है, अभी कुछ दिनों में आपको शेयर कर देंगे। तो उसमें सारा लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसमें ये नहीं है ज़रूरी कि वो आपकी लैब में है या नहीं है। अच्छा जी, अब मैं चैट से क्वेश्चन देखता हूँ। ये लिखा हुआ है सिट। हाँ जी, सिट की कोशिश पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम सिट की बजाय जो ये प्रैक्टिकल एग्जाम है इसका मॉक एग्जाम करवाएंगे। ये डॉक्टर उसामा, ये मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आपने वही सवाल पूछ लिया कि जुलेखा औरत थी या मर्द थी। ये अप्रूव्ड है, इसका नोटिफिकेशन हुआ है। ये आप CPSP की वेबसाइट पे जाएं तो ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे पड़ी है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम है वो इसी फॉर्मेट में होना है, ठीक है? कोई बात नहीं, खैर आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। तो ये बिल्कुल अप्रूव्ड है और ये इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये हुनैन ने क्या पूछा है, डू वी हैव टू पास ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली? जी जी, आपने देखो बेटा, ये जो टेबल मैं शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट में आपने 55% मार्क्स लेने हैं और एग्रीगेट में 60% लेने हैं। तो अगर आपके एग्रीगेट में 80 भी आ गए, सॉरी 40 आ गए, आपके 80% आ गए और एक कंपोनेंट में 5.0 आ गए, तो यू आर फेल। समझा? अल्लाह ना करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 5.4 विल आल्सो फेल यू इवन इफ यू हैव गॉट 40 मार्क्स इन द ऑन द एग्रीगेट। तो हर कंपोनेंट में 5.5 मार्क्स और ऊपर क्या लिखा था, तेरी एग्जाम प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन। हाँ जी, हम कराएंगे बिल्कुल। हाँ जी, ये सवाल जो पूछा है क्लिनिकल ट्रेनिंग। जी, क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ये डन है, ये हो गया अब आपकी। लेकिन ये जो ट्रेनिंग्स अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए है, फॉर एग्जांपल जो थर्ड ईयर में जाएंगे अभी जुलाई में, जो थर्ड ईयर में गए हैं उनके लिए होगा कि आपने 3 मंथ्स मेडिसिन, 3 मंथ सर्जरी में बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा के आपने ट्रेनिंग पे जाना होगा। लेकिन अभी इसका थोड़ा सा रह गई कसर, इसका एक नोटिफिकेशन पेंडिंग है। कोरोना की वजह से CPSP का वो एग्जाम डिपार्टमेंट जो थोड़ा स्लो हो गया था, तो अब इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर कोर्स जो है ना वो
हम पिंडी में ही कराएंगे, जाहिर है, और तो कहीं नहीं करा सकते। या मैं डॉक्टर नाम से आप रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो वहाँ पे इंडस में या कहीं और भी एक करवा दें, तो दैट इज़ गुड सजेशन डॉक्टर सईबा, हम वहाँ करवा लेंगे। हम आप कहते हैं तो ग्वादर में ना करवा दें? ओके, और क्या जी, और कोई क्वेश्चन? प्लीज माइक ऑन करके पूछ लें। टेन मिनट्स में आपने पूछा है कि चेंज, ये पूछा ना कि चेंज शामिल है कि नहीं? जी जी, उसमें चेंज शामिल है, चेंज ऑफ स्टेट। आर टॉपिक्स ऑफ पेपर 2 सेम एज गिवन? यस, ये वही है डॉक्टर रुखसाना, ये वही है, मैंने आपको शेयर भी कर दिया था, इसमें कोई चेंज नहीं। ओके, और कोई सवाल? 1 minute more. I think there are no questions. डॉक्टर नान, हम खुदाफिज करें? डॉक्टर रिजवान, आपने कुछ कहना है प्लीज? नहीं सर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, सब आपने ऑलरेडी आउटलाइन की हुई थी चीजें, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। और बाकी ये है कि मेहनत करें, और वो जो सवाल था ना अपना जुबैर वाला, डॉक्टर जुबैर का, उसका जवाब यही है कि जो चीज आपकी अपनी फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं है, वो जो है आप अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जाके उसको कवर कराने की कोशिश करें। कंसेप्चुअली आपको हर चीज का पता होना चाहिए, और प्रैक्टिकली वो चीज मैक्सिमम आप देख सकते हैं, तो पॉसिबल हो उसको जरूर देखें। जी बिल्कुल 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 सही है। ये नहीं है कि आप आपसे कोई बहुत एडवांस लेवल पे, आपने ये बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि कम से कम आपको उसका बेसिक पता हो, प्रोडक्शन हो। जरूरी नहीं कि बहुत डिटेल में आपको उसके बारे में पता हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम FCPS केमिकल पैथोलॉजी बन गए और HPLC के बारे में कहें जी वो तो हमारे लैब में था, मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको सारा कुछ हो जाना चाहिए। सिट कोर्स कराएंगे डॉक्टर आयशा? अब चलें हम नोट कर लेते हैं कि कराची में भी करा दें और एक पिंडी में करा दें, इन दो जगहों पे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कराची में कराने के लिए डॉक्टर नान और डॉक्टर इमरान सिद्दीकी, डॉक्टर आयशा, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ तो ये लोग करवा देंगे वहाँ। अच्छा, MCQs अटेम्प्ट करने के बारे में मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि आप के वो सिर्फ उसके लिए, डिफेंस डे के लिए उन्होंने किया है। ये कौन है? हम करें, अपना माइक म्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आने लग गई। अच्छा, तो ये MCQs में वन बेस्ट चूज करना होता है आपने, ठीक है? आपने करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना होता, आपने जो बेस्ट होता है वो ढूंढना है। इतनी सी बात आपको कहनी। आई थिंक मेरा ख्याल है अब काफी हो गया, तो अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमारा थैंक यू वेरी मच। आप एक सेंटेंस या दो सेंटेंस बोलिए। بس درينا काफी अस्सलाम वालेकुम। جوړه ده